Hi everyone. So today we'll be starting with science and tech Pt365. So let's start with our first topic, that is biotechnology. The first topic under this section, biotechnology, is DNA technology use and application regulation bill of 2019. So why this was a news? Recently, Parliamentary Standing Committee on Science and Technology has expressed concerns over some of the provisions of the DNA technology use and application regulation bill of 2019. Okay. So first, let us see about this. So DNA is a unique identifier, and we can identify DNA from any tissue swabs. And here is a point that RBCs, they do not have a well-developed DNAs. And also DNA is used as a tool for criminology, that is detecting for solving cases in different parts of the world. So now India is planning to do the same. Now let us see the key provisions of this bill. Then we'll come to another points. So the key provisions of the bill is a regulation of use of DNA technology for establishing the identity of certain persons, including the offenders, victims, suspects, and under trials. Also, DNA testing is allowed only in respect of matters which are listed in the schedule of this bill, like offences under IPC of 1860, civil matters like paternity suits for establishment of individual identity, etc. Also, the consent for collection of DNA, it will be required as per the provisions of the bill, and establishment of a national DNA data bank, regional DNA data bank, and also the regulatory board is constituted. So DNA database will be created. So here is first point is whose DNA data will be collected. So the people will collect DNA data of people whose punishment is more than 7 years without their consent. People can detect and can collect the DNA of those people, and those people who are arrested in crime and their punishment is less than 7 years, वहाँ पर उनकी मतलब 7 साल से कम अगर punishment है तो उस इंसान का consent ज़रूरी है. But in case वो इंसान अपना consent नहीं दे रहे हैं, so the police officers will they can approach the magistrate, और वहाँ से फिर magistrate से उन्हें permission मिल जाएगा और वो उनका जो DNA डेटाबेस है उसे कलेक्ट कर सकते हैं. सो ये प्रोविजंस है. ऑल्सो ये जो नेशनल डेटा बैंक और रीजनल डेटा बैंक कॉन्स्टिट्यूट होंगे, इस्टेब्लिश होंगे, इसलिए बिकॉज कोई भी इलीगल मिसयूज़ ना हो, और इसके लिए पेनल्टी भी लगाई है. एज वेल एज ये बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट पीपल कुड बी आइडेंटिफाइड फॉर एंड जस्टिस डिलीवरी जल्दी हो सके. एंड बिल जो है ये स्पेसिफिकली सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए है. एंड कंसर्न्स भी है, वो प्राइवेसी कंसर्न्स आर देयर. एंड ऑल्सो DNA टेक्नोलॉजी के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, लाइक जस्टिस डिलीवरी, बेसिकली इसके लिए, एंड प्लस सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए ही इस बिल को लाया गया है. सो इट विल अप्रेहेंड द रिपीट ऑफेंडर्स जो हीनियस क्राइम करे, जैसे रेप एंड मर्डर्स. एंड इट ऑल्सो एक्सपेडिट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस. तो जो गलत कन्विक्शन हो जाते हैं या फिर एक्यूरेसी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की है वो बढ़ जाएगी इससे. एंड ऑल्सो हेल्थ इशू में भी हेल्प करेगा, दैट इज़ टू हेल्प डायग्नोज दी जेनेटिक डिसीजेज जैसे सिकल सेल डिसीजेस, या कोई नई वैक्सीन डेवलपमेंट करनी है उसके लिए हेल्प करेगा. टू आइडेंटिफाई द पैथोजेंस और बायोलॉजिकल रिमेन्स जैसे कि आर्कियोलॉजिकल डेड्स एंड रेस डिसीजेस वगैरह. इसके अलावा एग्रीकल्चर में टू डेवलप द जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स जो डिसीजेस से रेजिस्टेंट हो गए, इंसेक्ट वेस्ट, हर्बिसाइड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा. इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करेगा, जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रोटीन के बने हैं, उनको वेस्ट से बनाया जा सकता है. एंड ऑल्सो बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे मिसिंग पर्सनस या कोई अनआइडेंटिफाइड केसेस हैं, और जो माइग्रेशन पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज़ DNA and RNA. So DNA replicates and stores the genetic information. इसमें genetic information store करके रखते हैं. It is a blueprint for all the genetic information जो किसी एक organism के अंदर है. ये एक hereditary material है humans में और almost सारे organisms में, और इसमें mutations भी हो सकती है. Also DNA में 2 strands होते हैं जो double helix में arranged होते हैं. तो this is the diagram given. ये एक strand है और ये सेकेंड स्ट्रैंड है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिया है. दीज आर दी जेनेटिक फुटप्रिंट्स और जेनेटिक इनकोडिंग जो DNA में होते हैं, जैसे साइटोसाइन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन. तो DNA में ये सारे पेयर्स मिलेंगे. दीज आर द न्यूक्लियोबेसेस ऑफ द DNA. और इसके अलावा विल सी द शुगर इन DNA इज डीऑक्सीराइबोस, जिसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कम है RNA राइबोस से, तो ये एक डिफरेंस है.
ऑल्सो डीएनए में हमने पढ़ लिया कि जो बेसिस है वो है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ऑल्सो डीएनए इज वल्नरेबल, अल्ट्रावायलेट लाइट से वो डैमेज भी हो सकता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आरएनए। आरएनए कन्वर्ट्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन डीएनए टू फॉर्मेट यूजिंग टू बिल्ड प्रोटीन्स। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाने का, एंड it moves to ribosomal protein factories also. Proteins are the antibodies, they are very important function of the cellular cycle. जितने भी सेल में साइकिल्स काम करते हैं उसके लिए हेल्प करता है। ऑल्सो आरएनए हैज़ वन स्ट्रैंड जैसे डीएनए में डबल होता है, बट ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस भी हैं जैसे वायरसेस वगैरह में। एक जनरल स्टेटमेंट अगर आता है कि आरएनए हैज़ वन स्ट्रैंड एंड डीएनए हैज़ डबल, सो इट इज़ करेक्ट। बट अगर ये पूछे कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स में आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल्सो आरएनए कंटेन्स द राइबोसोम शुगर मॉलिक्यूल्स, जिसमें हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आरएनए में एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं जो डीएनए में भी होते हैं, बट आरएनए में यूरासिल होता है ना कि थाइमिन। तो ये डिफरेंस है जो यहाँ पे डायग्राम में भी शो है। सो साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनिन दोनों में होंगे, बट यूरासिल होगा आरएनए में एज अ न्यूक्लियर बेस और थाइमिन होगा डीएनए में। सो दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए फॉर्म्स इन न्यूक्लियोलस एंड देन मूव्स टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स साइटोप्लाज्म के, मतलब जिस भी टाइप का आरएनए है, और ये मोर रेसिस्टेंट है टू डैमेज फ्रॉम यूवी आर डीएनए से। तो ज़्यादा डैमेज अगर यूवी से होगा तो वो आरएनए को होगा मोर देन डीएनए। सो डीएनए आरएनए दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रीड करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो तीन टाइप के आरएनए होते हैं। फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए विच कॉपीज द पोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड कॉपी करता है, उस वो प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये कॉपीज को वो ट्रांसपोर्ट करेगा राइबोसोम्स में, जो कि सेलुलर फैक्ट्रीज हैं जो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन बनाते हैं इस कोड से। नाउ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स चेन्स, मतलब अमीनो एसिड्स की बहुत सारी चेन्स होती हैं, वो माला टाइप, और फिर वो अलग अलग पैटर्न में रोटेट हो जाती हैं। एंड ऑल्सो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अमीनो एसिड्स बेसिक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स टू दीज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं इनके पास लेके आते हैं अमीनो एसिड्स को जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और कोडेड इंस्ट्रक्शंस को जो भी एमआरएनए ने इंट्रोड्यूस करे हैं। दिस प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम फैक्ट्री इटसेल्फ विदाउट विच प्रोटीन प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए के बिना प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैसेंजर आरएनए मतलब एक प्रोसेस है पूरा, जैसे एक स्टोर हाउस में क्या प्रोसेस है वो मैसेंजर आरएनए है। और राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरआरएनए, ये एक इंजन है, मतलब जैसे किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए इंजन होता है, तो दिस इज द इंजन। So this is all about first news. Now let us move on to our next news, that is mRNA vaccine. So recently news में क्यों था, because India's first indigenous mRNA vaccine that got the Drugs Controller General of India DCGI nod for the human trials. Now let's see first कि कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं. So conventional and gene based vaccines are there. Conventional is the traditional method, so it includes live attenuated vaccines, inactivated pathogens also known as killed vaccines, viral vector vaccines and other types known as subunit toxoid conjugate vaccines. So let us first see कि conventional vaccine क्या होती है. So इसमें जो है live attenuated form, वहाँ पे अगर हम देखें तो जो pathogens है और या फिर वायरस जो है उनको लिया जाता है और फिर उनको उसके वीकेंड फॉर्म में लिया जाता है और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं. उसके बाद बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज दैट इज प्रोटीन्स उनके अगेंस्ट, मतलब बॉडी को पता चल जाता है कि ये एंटीजेंस आए हैं, इनके अगेंस्ट अब ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है. तो जब भी नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन होगा बॉडी याद रखेगी और फिर दोबारा से एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी. सो दिस इज लाइव एटेन्यूएटेड. यहाँ पे ये होता है कि पैथोजन या वायरस जो भी है उसको उसके वीकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं. इनएक्टिवेटेड में क्या होता है कि पैथोजन और वायरस को मार देते हैं, फिर उसके बाद उसे इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, और फिर जैसे ही वो बॉडी में जाता है तो बॉडी को दिखता है कि ये कोई एंटीजन आया है, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है. नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन होगा तो वही वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी. लेकिन इनएक्टिवेटेड में क्या होता है कि ये लाइव एटेन्यूएटेड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता. सो दिस इज़ दी कन्वेंशनल वन जो हमने यहाँ पे कन्वेंशनल वैक्सीन जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे. उसके बाद है जीन बेस्ड वैक्सीन. तो इसमें दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, डीएनए और आरएनए वैक्सीन. सो इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी, डीएनए या आरएनए वैक्सीन जो है वो वायरस का खुद का जीन लेते हैं और फिर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं. दूसरे वर्ड्स में देखें तो दे कैरी द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द होस्ट सेल्स टू मेक द एंटीजेंस. यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से है जैसे
mRNA वैक्सीन अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि उसमें mRNA सीक्वेंस जो वैक्सीन होती है उसका पार्ट होता है mRNA सीक्वेंस, उसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। उसके बाद वो सेलुलर बॉडी को बता देता है कि हाँ अब उसे वो स्पाइक प्रोटीन्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड जो कोरोना वायरस है उसमें स्पाइक्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, लाइक दिस वन। तो ये वाले स्पाइक्स जो हैं बॉडी जो है इन स्पाइक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन्स बॉडी में बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो बॉडी इनको एक एज एंटीजन ले लेगी, तो बॉडी इनको एंटीजन आइडेंटिफाई करती है और इनके खिलाफ एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। एंड दैट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेलुलर मशीनरी हमारी बॉडी में याद रखती है। जब भी नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उन्हीं एंटीबॉडीज़ को बनाना स्टार्ट कर देगी इसी एंटीजन के खिलाफ और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया में लग रहे हैं, कोविशील्ड में जो है वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड दैट इज एडिनोवायरस एक है, उसका पैथोजन यूज़ किया है वीकेंड वर्जन, और कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ करी है। कोरोना वायरस का डेड फॉर्म जो है उसको लिया गया है, फिर उसको वैक्सीन बनाने में हेल्प किया है। तो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस पार्ट। तो कन्वेंशन में हमने पढ़ लिया कि इट एक्सपोजेस द बॉडी प्रोटीन्स जो वायरस बैक्टीरिया एंड ऑफन उनको वीकेंड या इनएक्टिवेटेड वर्जन में लेते हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन जो हैं इनका इनमें रेफ्रिजरेशन चाहिए। जीन बेस्ड वैक्सीन में देखें तो डीएनए आरएनए वैक्सीन जो है वो अपने मैसेजेस सेल को दे देते हैं जो भी डिजायर्ड प्रोटीन उनको चाहिए, और इम्यून सिस्टम जो है उनके अगेंस्ट प्रोटीन दैट इज एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। इनको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं कन्वेंशनल वैक्सीन से। वार्म क्लाइमेट्स में देखें अगर इन्हें ड्राई स्टीराइल 8 pH के अंडर रखें तो भी ये जिंदा रह सकते हैं। ऑल्सो दिस mRNA vaccines they are not made with pathogen particles और या फिर inactivated pathogen से, so ये नॉन इन्फेक्शियस है। RNA स्ट्रैंड जो वैक्सीन में है ये डिग्रेड है once the protein is made, and also mRNA वैक्सीन जो है वो स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी दे सकती है ट्रेडिशनल वैक्सीन से ज़्यादा, हमने देख लिया, और ये ज़्यादा टॉलरेटेड है हेल्दी इंडिविजुअल्स में, साइड इफेक्ट्स इनके बहुत कम है। दीज वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर रैपिडली, तो जल्दी लेबोरेटरी में ये बन सकती है। सो दिस इज ऑल, मतलब ये जो भी यहाँ पे इसके बारे में लिखा है वी हैव डिस्कस्ड, प्लीज रीड इट वंस फ्रॉम हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज जीएम क्रॉप्स। सो व्हाट इज जीएम? दैट इज जीन एडिटिंग इन क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में कुछ भी जीन एडिटिंग करते हैं सो दैट वो पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंस बन सके, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके। सो वाई दिस वॉज अ न्यूज? सो रिसेंटली पुणे बेस्ड Agharkar Research Institute, an autonomous institute of Department of Science and Technology, they mapped two genes, that is RHT14 and RHT18 in wheat. So this is important कि कौन से क्रॉप के लिए क्या लिया गया है। So ये alternative dwarfing genes हैं wheat में, which are associated with better seedling, vigor and longer. ये सब जरूरी नहीं है, important for examination is this. These are two alternative dwarfing genes in wheat, RHT14 and RHT18. Also these can reduce the crop residue burning और deeper wheat seeds का sowing उसमें हेल्प कर सकते हैं टू अवेल द एडवांटेज ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर। जो भी सॉइल में मतलब ड्राई एनवायरनमेंट में अगर मॉइस्चर की कमी है तो वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर जीएम क्रॉप्स? दीज आर जीन्स विच आर आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीशीज़। जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए जैसे कि पेस्ट रेसिस्टेंट करना है तो उसका जीन, एक पर्टिकुलर जीन लेके उस क्रॉप में इंसर्ट कर देते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए। करंटली अभी इंडिया में जीएम क्रॉप जो ग्रो हो रहा है दैट इज़ ओनली बीटी कॉटन, बट इलीगल जीएम क्रॉप्स जैसे ब्रिंजल, सोयाबीन वगैरह ये ग्रो हो रहे हैं। दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर is a well established regulatory framework for this GM crops as per the rules for the manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms और cells 1989। इनका ये सारे प्रोविजंस जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर आते हैं। ऑल्सो देयर आर सर्टन कंसर्न्स रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स, ह्यूमन हेल्थ में भी कैंसरस वगैरह है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। एंड GEAC इज़ द एपेक्स बॉडी जो कमर्शियल रिलीज जीएम क्रॉप्स का करती है। सो इट इज़ एस्टैब्लिश इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज विच इज़ द एपेक्स बॉडी जो जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अप्रूव करते हैं। ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, GAEC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली engineered organisms। एंड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2017 में GM मस्टर्ड दैट इज DMH11 वॉज डेवलप्ड बाय DU एंड ICAR एंड इसका बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि GEAC ने इसको अप्रूवल दे दिया था इस लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने इन्हें अप्रूव नहीं किया क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट इससे रिलेटेड हुआ था। एंड ऑल्सो
There is a protocol that is Cartagena protocol which is under the CBD conventional biological diversity जहाँ पे living modified organisms का जिक्र हुआ है. So GM crops are one of the examples under this living modified organisms. And there is another related news, that is mandatory no genetically modified certificate for food imports. तो FSSAI ने जनवरी 21 से ये ऑर्डर निकाला है कि जो भी 24 आइडेंटिफाइड फूड्स हैं लाइक एप्पल, प्लांट, मेज, वीट, मेलन, पाइनएप्पल, पपाया, प्लम, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, शुगर केन, टमाटो, स्वीट पेपर, स्क्वैश, फ्लैक्स सीड, बीन, प्लम एंड काईकुरी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये सारे जितने भी 24 आइडेंटिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको मैंडेटरीली डिक्लेयर किया गया है कि दे आर नॉट द GM crops. And also the GM food imports require approvals under the two laws, that is Environment Protection Law and the FSSA, that is Food Safety and Standards Act 2006. So after GAEC approval जो FSSAI है that does the risk assessment और फिर उसके बाद उसे कंजम्पशन के लिए क्लियर कर देते हैं. रिसेंटली GAEC ने एक ग्रीन लाइट दिया है फॉर द बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 2, दैट इज द इवेंट 142, जिसमें बीटी ब्रिंजल के वैराइटीज़ का जो टेस्ट है, ट्रायल्स हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए बोला है. Now next news is genome sequencing. So what is genome sequencing? It is encoding of gene and entire pattern of that particular gene is known as gene sequencing. So why this was in news, results of indigen program, इसमें 1008 लोगों को लिया गया था. CSIR they were recently published, उन्होंने इसके रिजल्ट्स पब्लिश किए गए हैं. तो इंडिजन प्रोग्राम जो था इसका एम ये था कि पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग 1008 इंडियन इंडिविजुअल्स का लेंगे, उनका मतलब जितने भी एथनिक अलग अलग ग्रुप्स हैं इंडिया के, उनको उनके जीनोम को लिया जाएगा, उनकी सीक्वेंसिंग करी जाएगी. It was funded by CSIR India, जो एक autonomous body है. CSIR is the largest research and development organization in India under the Ministry of Science and Technology. So ministry यहाँ पे Science and Technology है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डाटाबेस कलेक्ट करना है पूरा जेनेटिकल एपिडेमियोलॉजी जितने भी जेनेटिक डिसीजेस हैं उनको लेके. And it is also seen as a precursor to a too much larger exercise to map a larger swathe of population in the country. Now CSIR has announced the conclusion of whole genome sequencing of 1008 Indians from different populations across the country. और उसमें ये इन्हें मिला है कि 32% of the genetic variations in Indian genome sequence are unique. अगर हम ग्लोबल जीनोम से देखें तो ऑलरेडी मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोग्राम्स हो चुके हैं. इंडिया में ये हुआ था देखने के लिए कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो उसमें क्या क्या अलग अलग जीनम्स हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं. तो ये रिजल्ट शो हुआ है कि 32% जेनेटिक वेरिएंट्स है. एंड ऑल्सो द कंप्यूटेशनल एनालिसिस लेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स इन इंडिया जीनोम डाटा सेट. तो कुछ ग्लोब से हट के यूनिक जीनोम सीक्वेंसेस इंडिया में पाए गए हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस इज इंडियन जीनोम वेरिएशन कैसा है, जेनेटिक डिसीजेस कौन कौन सी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो एक डिसीज़ का कैरियर है, उनके मैकेनिज्म्स कैसे वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर एथनिसिटिक ग्रुप में. एंड ऑल्सो दी फार्माकोजेनेटिक, दैट इज स्टडी ऑफ हाउ जीन्स दैट अफेक्ट पर्सन्स रिस्पॉन्स टू ड्रग, कि किस ड्रग से कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जीन्स. ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑन दिस पॉपुलेशन स्केल, मतलब इतना बड़ा diverse country है India. And also making genetic variant frequencies available for the clinical applications. Understanding the genomes, that is study of entire genome sequence will help the scientists understand how genome as a whole works, मतलब कैसे पूरा जीनोम काम करता है. So इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और है, that is ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है टू डिटरमाइन द DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम. 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में खत्म हो गया था. इट गिव अस द एबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रीड नेचर्स कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट, और जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए बिल्ड करने के लिए. इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA. इसके अलावा एक और है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ये इंडिया का जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है, दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट स्क्रैचिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. जीनोम सीक्वेंस जो है वो बताता है कि कैसे पूरा जो भी हमने अभी ऊपर DNA देखा उसका बेस है न्यूक्लियोटाइड कैसे है, और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. जीनोम मैपिंग सिंपली आइडेंटिफाई सीरीज ऑफ लैंडमार्क्स. तो जीनोम सीक्वेंस में क्या होता है कि पूरा ऑर्डर देखते हैं, पूरा बेस न्यूक्लियोटाइड एक एक उसका ऑर्डर चेक किया जाता है DNA में. लेकिन जीनोम मैपिंग में क्या होता है कि सिंपली एक लैंडमार्क और DNA का मतलब उसका मैप प्रोवाइड करके देते हैं. तो इट होप्स टू फॉर्म द ग्रिड आफ्टर कलेक्टिंग 10,000 सैम्पल्स फर्स्ट फेज में इंडिया में. एंड इट वॉज क्लियर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन January 2020. एंड इट इन्वॉल्व्स 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द IIS
of Bangalore and few IITs also. Now some other important news. So first is biopesticides. So what is biopesticide? These are the biological components like bacteria, virus, fungi जिसको as a pesticide use किया जाएगा. Recently Institute of Pesticide Formulation Technology under the Ministry of Chemicals and Fertilizers उन्होंने biopesticide formulation को डेवलप किया है फॉर इंसेक्ट कंट्रोल इन द सीड स्पाइस क्रॉप्स. अब और इसमें क्या है कि गुड शेल्फ लाइफ है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सेफ़ है, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं दे आर टॉक्सिक और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़तरनाक भी साबित होते हैं, बहुत सारे कैंसरस भी होते हैं. सो इसको एग्रीकल्चरल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जो भी इंसेक्ट से लॉस हो रहा है या फिर जितने भी सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड से लॉस हो रहा है उससे हेल्प कर सकते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन दिस एंटोमोपैथोजेनिक फंगस दैट इज़ वर्टिसिलियम लेकेनिम. एंड नेक्स्ट इज ये बायोपेस्टिसाइड्स क्या है. दीज आर फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, नेमाटोड्स या फिर कोई भी सब्सटेंसेस जो इंक्लूड्स प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड सेमी केमिकल्स जैसे इंसेक्ट्स के फेरोमोन्स वगैरह. इसके एडवांटेजेस यही हैं, टॉक्सिक नहीं है एंड इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. एंड बायोपेस्टिसाइड्स कितने टाइप के हैं. सो माइक्रो substances जो नेचर में है एंड प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, फंजाई, बैसिलस thuringiensis एंड मोर टारगेटेड इन देयर एक्टिविटी दैन द कन्वेंशनल केमिकल्स. तो इनको जो भी एक्टिविटी के लिए टारगेट किया जाता है वहाँ पर ये हेल्प करेंगे. इसमें प्लांट मटेरियल्स हैं जैसे कॉर्न, ग्लूटेन, गार्लिक ऑयल, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा. इंसेक्ट हार्मोन्स जो मीटिंग, मोल्टिंग इन सबको रेगुलेट करते हैं एंड ऑल्सो टेंड टू कंट्रोल द पेस्ट विदाउट किलिंग देम. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट एक बार रीड कर लेना चाहिए. So genes and proteins which are introduced into plants by genetic engineering are also the genetically modified plant to protect the plant from its pest. Next news is National Biomedical Resource Indigenization Consortium, that is NBRIC. So recently NBRIC was constituted by Department of Biotechnology under Ministry of Science and Technology. ये क्या है? इट इज़ होस्टेड एंड लेड बाय द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स. ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसका मेन एम यही था कि जितना भी रिसर्च या फिर जो भी रिसोर्सेज, सर्विसेज, कोई भी डायग्नोस्टिक है, वैक्सीन्स हैं या कुछ भी कोविड-19 से रिलेटेड है, वो सारा ये देखेंगे इन इंडिया. इट इज़ अ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, जिससे कि इम्पोर्ट, सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके. इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सो इट विल आइडेंटिफाई प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो बायोमेडिकल रिसोर्सेज के लिए क्रूशल हैं एंड उनके करंट कैपेसिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को असेस करेगा. ऑल्सो इट विल बी सपोर्टिंग बाय क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड कनेक्टिंग विद पॉलिसी मेकर्स और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को, जो भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको सबको ज्वाइन करेगा. एंड बी द गेटवे फॉर फंडिंग फ्रॉम DBT, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल होगा इसमें अंडर एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Two miscellaneous news are also there. BBX11 एक न्यूली आइडेंटिफाइड जीन है दैट फैसिलिटेट्स इन ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स बाय रेगुलेटिंग लेवल्स ऑफ फोटोक्लोरोफिलाइड. तो क्लोरोफिल एक पार्ट होता है प्लांट्स में, तो जब क्लोरोफिल सिंथेसाइज होता है उससे पहले ये बनता है. सो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. बस क्या कि BBX11 क्या है? तो इट इज़ न्यूली आइडेंटिफाइड जीन जो प्लांट्स की ग्रीनिंग में हेल्प करता है, विच रेगुलेट द लेवल ऑफ दिस प्रोटोक्लोरोफिलाइड. एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्विक सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर दैट इज प्रोटोक्लोरोफिलाइड बनाते हैं इन द डार्क विच ग्लोज रेड व्हेन ब्लू लाइट्स इज स्टोन. इंपॉर्टेंट नहीं है. एज सून एज द प्लांट कम्स आउट इन to the light from under the soil, light dependent enzymes they convert photochlorophyllide to chlorophyll. Next in news is Center for Biopharma Analysis, that is CBI at Pune. So it was launched by Department of Biotechnology to provide high quality and analytical services for biopharmaceutical developers and manufacturers. It is designed to cater जितने भी academics या medicine developers जो भी हैं कि वो वैक्सीन्स, ड्रग्स या डायग्नोस्टिक से रिलेटेड या बायोफार्मा प्रोडक्ट्स जितने भी उनका डेवलपमेंट है उसको फास्ट ट्रैक कर सकें. इसकी फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन. एंड इट एम्स टू मेक इंडिया अ हब की जो वो डिज़ाइन और डेवलप कर सके जितने भी अफोर्डेबल, इफेक्टिव बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं. जॉइंटली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक. एंड ऑल्सो बिराक जो है वो DBT के अंडर एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की तरह हेल्प कर रहा है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन. वील मीट इन दी नेक्स्ट वन.